अस्सलाम वालेकुम। हम लोगों ने अपना रह गया था। ठीक है जी। The memory is stored in hippocampus, pons, amygdala, both A and C. It's both A and C. The identification of emotions that patient is experiencing and offering an acknowledgement for that is known as patient की वो emotions जिसको हम identify करते हैं और हम उसको ये श्योर करते हैं कि भाई हम समझ सकते हैं कि आप किस तरह से फील कर रहे हो, आप किस सिचुएशन से गुजर रहे हो. दिस इज नोन एज empathy. While the sympathy is feeling sorry for the others or sorry for the patients. So to understand others' feeling or others' situation, like you are going through that situation, is known as empathy. The acquisition of new behavioral pattern is known as study, learning, emotion, perception. Learning. Learning is the procedure through which we acquire or learn. ठीक है? We acquire new behavioral patterns, how to wake, how to eat, how to sleep. जब बच्चा छोटा होता है तो उसको ये सारी चीजें सिखाई जाती हैं. So this is known as learning. The physician-assisted death is known as killing, murder, suicide, euthanasia. Euthanasia. The oath of Hippocrates is based on medical sociology, medical science, medical ethics, behavioral science. It is medical ethics. Hippocrates is basically known due to the basics of medical ethics. The mind reading ability is known as illusions, clairvoyance, telepathy, metacognition. इल्यूजन ये होता है कि जो हमारा स्टिमुलस है वो प्रेजेंट नहीं होता लेकिन हम उसे परसीव कर रहे होते हैं. दैट इज इल्यूजन, जो कि एक्चुअल में नहीं होता लेकिन हमें लग रहा होता है. और क्लैरिवेंस इज द रिजल्ट दैट वी ऑलरेडी नो, जो हमें अंडरस्टूड होता है कि इस सिचुएशन में हम इसको इस तरह से करेंगे तो इसका एंड रिजल्ट यही होगा. टेलीपैथी इज बेसिकली द माइंड रीडिंग ability. Metacognition is we think that how we think. Genius have I score 120 plus, 140 plus, 80 plus, or 100 plus. It's 140 plus. Guiding the conversation from a broader area to a more specific one is known as funneling. Leading question जो कि vast area पे जो है वो कंसिस्ट करते हैं कि पेशेंट जो है वो हमें खुल के उनका आंसर करता है. फनलिंग इज बेसिकली कि हम उसको क्वेश्चन एक ऐसा पूछते हैं कि वो पहले पूरा बताता है, फिर एंड पे आके हम उसको चाहते हैं कि वो हमें हमारा आंसर उसे जिस उसके सिम्टम के बारे में हम पूछना चाह रहे हैं वो हमें उसका आंसर करे. हम पेशेंट से पूछते हैं कि वो हमारे पास अगर किसी कह लें डिसेबिलिटी के साथ आया है या किसी लिम्ब पेन के साथ आया है, वो एथलीट रह चुका है, उसने हमें बताया, तो हम उससे पूछें कि भाई अच्छा आपने बताया कि आप पहले इतनी इतनी मील भाग सकते थे, इतना आप काम करते थे, इतनी इतनी देर एक्सरसाइज करते थे, जिम जाते थे, और अब आप मुझे बता सकते हैं कि अब आपको ये दर्द किस टाइम पे होता है, कब कब होता है. सो दिस इज फनलिंग. We are guiding the conversation from more broader area to the specific one, to the symptoms that we have to know. Paraphrasing, it basically repeating the last few words of the previous conversation, and closed question that ends at yes or no. Using which theory the George Angel proposed a triad between biological system, psychological system, and sociological system. Dalton's theory, learning theory, behavioral theory, or system theory. This is the behavior. हमारे जो behavioral pattern होते हैं that are due to biological system, साइकोलॉजिकल सिस्टम एंड सोशियोलॉजिकल सिस्टम. इन तीनों का इम्पैक्ट जो होता है वो हमारे बिहेवियर पे होता है. सो हमारा जो सोसाइटी है वो इफेक्ट करती है हमें, हमारी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हमें कैसे इफेक्ट करती हैं, और फिर उनकी वजह से जो साइकोलॉजिकल इश्यूज होते हैं, ये तीनों मिलकर हमारा बिहेवियर जो है उसको डेवलप करते हैं. The BPS model or the biopsychosocial model of health care emphasis on surgical intervention, non-pharmacological intervention, meditation, biological intervention. नॉन फार्माकोलॉजिकल इंटरवेंशन. आपको पता है कि जो बायोसाइकोसोशल मॉडल है, माइंड,
बॉडी एंड स्पिरिट। वो नॉन फार्माकोलॉजिकल इंटरवेंशन पे बिलीव करता है कि हमें पर्सन को एज अ होल ट्रीट करना है और विदाउट यूजिंग मेडिसिन्स। Sociology and anthropology illustrate the evolution of human nature, human spirit, mind, body, human spirit। क्योंकि इसमें इंसान भी आ जाता है, उसकी रूह भी आ जाती है, तीनों पार्ट उसके आ जाते हैं। Psychology is the study of human behavior, human mind, psychological issues, psychological abilities, human mind. Simply, this is the definition of psychology. The study of human mind is known as psychology. Social system emphasizes the impacts of family, society, social force और all of above. जो हमारा सोशल सिस्टम है उसमें हमारी फैमिली भी आ जाती है, उसमें सोसाइटी भी आ जाती है, उसमें सोशल फोर्स आ जाती है, और सोशल फोर्स में हमारी फैमिली, हमारे रिलेशंस, all these factors. So all of above. For making communication effective, one must have great command on attire, outlook, verbal techniques, writing skills. Verbal techniques. आपकी वर्बल टेक्निक्स अच्छी होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि आपकी कम्युनिकेशन किस तरह करनी है आपने पेशेंट के साथ, आपको बेसिक कम्युनिकेशन स्किल्स आनी चाहिए। सो इन दिस वे यू विल हेल्प द पेशेंट्स। In breaking bad news, the doctor's behavior should be preoccupied, anxious, judgmental, relaxed. जब आपने पेशेंट को उसका कोई भी अपने उसको उसकी फेज के बारे में बताना है, डिजीज की बुरे फेज के बारे में आपने बताना है, यू मस्ट बी रिलैक्स्ड। अगर आप परेशान होंगे तो पेशेंट तो ऑलरेडी परेशान होता है, तो वो आपके चेहरे की तरफ देख रहा होता है जब आप उसको उसके बारे में बता रहे होते हैं ना, आपकी डिजीज के बारे में, तो वो आपको देख रहा होता है, आपकी बॉडी लैंग्वेज को। अगर आप परेशान होंगे तो वो डबल ट्रिपल उससे ज्यादा परेशान वो हो जाएगा। सो यू मस्ट बी रिलैक्स ड्यूरिंग ब्रेकिंग बैड न्यूज। पेशेंट को उसकी डिजीज के बारे में बताते हैं, उसकी कंडीशन के बारे में बताते हुए पहले सबसे आपको रिलैक्स होना है, तभी आप पेशेंट को रिलैक्स कर सकेंगे। Active listening involves linguistic aspects, body language, paraphrasing, both A and B. एक्टिव लिसनिंग में आपके लिंग्विस्टिक एस्पेक्ट्स भी नोट हो रहे होते हैं और आपकी बॉडी लैंग्वेज भी, कि आप पेशेंट को मुंह से भी आप जवाब दे रहे होते हो और आप अपनी बॉडी लैंग्वेज से भी उसको बता रहे होते हो कि भाई आप अटेंटिवली आप उसको सुन रहे हो, आप समझ रहे हो उसकी बात को। How many components a verbal communication has? 6. Active listening, questioning, funneling, paraphrasing, selective reflection. All these are the components of verbal communication. The question that must be avoided during effective communication: closed-ended, open-ended, leading, or starting with what? Leading question must be avoided. इससे एक तो टाइम ज्यादा लगेगा, आपको समझ नहीं आएगी, पेशेंट को भी समझ नहीं आएगी उसने क्या बताना है, कितना बताना है, ठीक है। पेशेंट तो फिर अपनी पूरी फैमिली हिस्ट्री खोल के बैठ जाते हैं। सो यू मस्ट अवॉइड लीडिंग क्वेश्चन। क्लोज्ड एंडेड गुड होते हैं, ठीक है, यस और नो में उनका आंसर होता है। In counseling, the doctor-patient relation is individual, mutual, loving, friendly. काउंसलिंग में म्यूचुअल रिलेशन होता है, आप पेशेंट को कुछ बताते हो, वो उसे अंडरस्टैंड करता है, वो समझता है, वो फिर आपसे जो है वो दोबारा पूछता है या दोबारा काउंसलिंग के लिए आपके पास आता है। सो इट इज अ म्यूचुअल रिलेशनशिप। The method of repeating last few words back to the patient which seem to be emotionally charged. Funneling, paraphrasing, selective reflection, attending. अच्छा, फनलिंग में तो हम उससे ब्रॉडर एरिया से जो है मोर स्पेसिफिक पे लिया है। पैराफ्रेजिंग में हमने लास्ट फ्यू वर्ड्स उसके रिपीट कर दिए, अच्छा अच्छा आपने ये बोला, अभी आपने ये बोला। अब जो सिलेक्टिव रिफ्लेक्शन है उसका ये मतलब है कि हम उसके लास्ट फ्यू वर्ड्स हम वो वाले रिपीट करते हैं जो जिनसे वो इमोशनली अटैच्ड है। लाइक मैंने जो पहले एग्जांपल दी थी कि पेशेंट जो है वो एथलीट रह चुका है, वो इतने इतने मील भागता है, अब हम उसको कहें कि भाई आप इतने मील भागते थे, तो वो उसको इमोशनली चार्ज करेगा। सो दिस इज नोन एज द सिलेक्टिव रिफ्लेक्शन। A patient from a village in Balochistan presented to you. He is suffering from diabetes. You can't understand or speak his language. Then what is the best way to provide information? This is scenario-based question and you have to read it carefully. Patient आपके पास आया है, अब वो उस एरिया से आया है कि उसे आपकी जुबान समझ में नहीं आती, आपको उसकी समझ में नहीं आती, तो in this case आप क्या करेंगे? You will use the sign language, make an attempt to learn his language, or drawing pictures. The answer is drawing pictures.
ना तो उस टाइम पे आपको कोई इंटरप्रेटर मिलेगा, ना साइन लैंग्वेज आपको आती है, या आप कोशिश करोगे आप पहले उसकी लैंग्वेज सीख के आओ फिर। सो आप उसको पिक्चर्स के जरिए आप उसे समझा सकते हो कि भाई आपको ये प्रॉब्लम है, ठीक है। सो द फर्स्ट वन इज द ड्राइंग पिक्चर्स। आप सबसे पहले ये ट्राई करोगे कि आप उसको ड्रॉ करके पेपर पे आप किसी तरीके से आप उसे समझा सको। द काउंसलर शुड बी एबल टू शो डैश टू द पेशेंट stereotype behavior, sympathy, warmth and genuinity, defensive behavior, warm and genuinity। जब तक काउंसलर खुद जो है वो रिलैक्स नहीं होगा, खुद वो पेशेंट को ऐसा फील नहीं करवाएगा कि भाई आप मेरे लिए अहम हो, इम्पोर्टेंट हो, मैं आपको गाइड करूंगा, तब तक पेशेंट जो है वो उससे सेटिस्फाई नहीं होगा। सो द काउंसलर मस्ट बी warmth and genuinity in his or her behavior। Feeling sorry for the patient, empathy, sympathy, caring, understanding, that's sympathy। Okay, scenario. While taking history in medical ward, a medical student asked the patient, "Do you feel nausea after taking your meals?" क्या आप खाना खाने के बाद मतली महसूस करते हैं? What type of question it is? Leading, open-ended, close-ended, repeated। अब आप उस क्वेश्चन को दोबारा रीड करो। Do you feel nausea? अगर मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछती हूँ, you will answer me in yes or no। So this is close-ended question कि हाँ मैं करता हूँ या नहीं करता। So this is closed-ended question. The answer is in the form of yes or no। The aim of giving information should be affectionate, friendly, professionalized, loving। जब हमने information देनी है तो वो professionalized manner में देनी है, not in friendly way, not in a loving way, and not in affectionate। ठीक है। और you must be expert in effective communication and giving information to the patient, and also in breaking bad news। So these are the part of your professional behavior। A patient comes to you with the history of abdominal pain, vegetation, and vomiting. By performing test examination, you find out that he or she is suffering from intestinal obstruction. What aspect of disease and treatment you should be communicate to the patient? अब ये सिनेरियो है। अब आपने स्टेटमेंट देके परेशान नहीं होना, पहले इसको रीड करें। उसने आपसे इन पर सिर्फ एक क्वेश्चन पूछा है कि आप उसको डिजीज के कौन से एस्पेक्ट बताएंगे। जब हम लोग पेशेंट से हिस्ट्री ले रहे होते हैं, ठीक है, और उसका कोई हम लोगों ने प्लान किया होता है, अगर कोई सर्जिकल प्रोसीजर, कोई मेडिकल ट्रीटमेंट, कुछ भी, हम उसको एक तो हमने उससे इन्फॉर्म कंसेंट लेनी होती है उसके सर्जिकल ट्रीटमेंट से पहले, और हमने उसको उसका प्रोसीजर सारा एक्सप्लेन करना था। सो उस प्रोसीजर के हमने उसे पॉजिटिव एस्पेक्ट भी बताने हैं, उसके नेगेटिव भी बताने हैं कि हम आपको ये मेडिकेशन देंगे, इससे आपको ये फायदा होगा और ये नुकसान होगा। सो यू हैव टू एक्सप्लेन बोथ नेगेटिव एंड पॉजिटिव एस्पेक्ट्स टू द पेशेंट। Crisis is the period of all organization, deformity, discomfort, distress। deformity, deformity basically body parts की होती है। deformity किसी भी bone की हो सकती है deformity, या कोई भी चीज जो क्या कहते हैं एक मखसूस पैटर्न में नहीं होती, अपनी ओरिजिनल शेप से वो चेंज हो जाती है, डी शेप हो जाती है। सो दिस इज डिफॉर्मिटी। तो क्राइसिस जो पीरियड ऑफ डिसऑर्गेनाइजेशन भी है, डिस्कम्फर्ट भी है, डिस्ट्रेस भी है, नॉट डिफॉर्मिटी। Disaster management include time period of treatment phases 4, 3, 5, 7. That's 3. Post-traumatic condition include depression, post-traumatic stress, all। post-traumatic conditions में anxiety भी होती है, depression भी हो जाता है, और post-traumatic stress भी हो सकता है। Returning to previous baseline functioning is dash of crisis, opportunity, resolution, normal pathway, disaster, resolution। जब हम normal functioning पे आ जाते हैं, baseline functioning पे, that is known as the resolution। A patient recently diagnosed with type 2 diabetes refuses to cut back the sugary drinks and sweet despite being given informational care by his doctor and warned of the seriousness of the condition। He is playing the phenomena of। अब पूरे उसको आप पढ़ें सिनेरियो को। पेशेंट है, उसको डायग्नोज हुई है डायबिटीज, हम उसको कह रहे हैं कि आपने मीठी चीजें नहीं खानी, आपने इन चीजों को छोड़ना है, लेकिन वो मान नहीं रहा, वो कुछ भी छोड़ नहीं रहा, वो ले रहा है बार बार। देन व्हाट इज दिस बिहेवियर? आप ऐसे बिहेवियर को क्या कहेंगे? ट्रांसफरेंस कहेंगे, काउंटर ट्रांसफरेंस कहेंगे, नॉन कंप्लायंस बिहेवियर कहेंगे, रेजिस्टेंस। वो रेजिस्ट कर रहा है, हम उसे कह रहे हैं कि आपने नहीं करना और वो कर रहा है, दैट इज रेजिस्टेंस। Which one of the following is used to make a clinical assessment of dementia? History taking and physical examination, MMSE, the mini mental state examination, MRI brain, CT brain, the mini mental state examination।
इससे पेशेंट की साइकोलॉजिकल कंडीशन का पता चलता है. A 14-month-old has to be taken to hospital for his vaccination. As soon as he enters the hospital, injection even brought in, he sees a doctor and smells the antiseptic. This is an example of systemic learning, operant learning, classical conditioning, or shaping. This is classical conditioning. हमारे पास स्टिमुलस हैं दो तरह के, ठीक है, वैक्सीनेशन और वो हॉस्पिटल. वो सिचुएशन से याद रखेगी कि जब भी वो हॉस्पिटल का नाम सुनेगी, वो इंजेक्शन देखेगी, वो डरेगी बच्ची, ठीक है, या स्मेल्स उस तरह की. So this is classical conditioning, pairing of two stimulus. Conditioned response है, हम उसका चाहते हैं. A 35 years old worker injured himself on construction site and lost a limb. The social support in our culture he can rely the most will come from owner of the construction site, volunteer, NGO, family. आपको पता है सबसे पहला जो हमारे केयर गिवर्स होते हैं, हमारी फैमिली होती है, हमारे फैमिली मेंबर्स होते हैं. So the first one social support will be come from family. Gerontology is the study of death, life, aging, culture. Aging. The event is known as storage and copying. Retrieval of memory. एक चीज जो आप ऑलरेडी याद कर चुके हो, बाद में दोबारा कहीं आपको जरूरत पड़ती है, आप उसको रिकॉल करने की कोशिश करते हो. That is known as the retrieval of memory. The post-traumatic growth was proposed by Freud, Pavlov, Richards, Roberts. It's Richards. Stigma refers to the. Stigma का मतलब होता है कि हम अपनी जो है, हम अपने आप को समझते हैं कि भाई हमारे में अगर ये डिसेबिलिटी है या हमें ये डिजीज है, तो मैं तो लोगों से पीछे रह गया हूँ इस चीज में, या मुझे इन्फीरियर, हमारे अंदर एक कॉम्प्लेक्स आ जाता है, एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है. दैट इज नॉन एज स्टिग्मा. Having a dangerous illness, being shameful, inability to interact with normal people, having a difference that is considered disgraceful or shameful by society. हमारे अंदर कुछ ऐसा होता है कि जो हमें लगता है कि सोसाइटी हमें जो है वो एक्सेप्ट नहीं करेगी, ठीक है, हम खुद ऐसा फील करते हैं. दैट इज स्टिग्मा. Peptic ulcer disease may have association with depression, stress, cancer, none. It's stress. Stress की वजह से हम लोगों को मोस्टली GIT के इश्यूज होते हैं, ठीक है, nausea, vomiting. So the peptic ulcer disease may have the association with stress. A 75 years old with chronic renal failure suddenly starts to become irritable and refuses to recognize his family members and appears to see the things that are not there. Delirium. Dementia. Dementia is the loss of memory. Schizophrenia, old age. It is delirium. एक तो उसकी एज रिलेटेड भी उसको भूलना शुरू हो गया, डिमेंशिया होना शुरू हो गया. दूसरा उसको illusions हो रहे हैं. So this is delirium. Cardiac disease and stress is more common in person with type A personality, person with type B personality, both A and B or none. There are two types of personalities, type A, type B. जो type A वाले होते हैं वो स्ट्रेस लेने वाले होते हैं, ठीक है, वो हर चीज को प्रेशर की तरह समझते हैं अपने ऊपर. कोई भी सिचुएशन आ जाए वो उसको प्रेशर फील करते हैं, स्ट्रेस लेते हैं, उसी तरह हैंडल करते हैं. तो कार्डियक डिजीज भी उनमें कॉमन होती हैं, ठीक है, GIT के इश्यूज भी उनमें कॉमन होते हैं. जबकि जो टाइप बी वाले होते हैं वो इजी गोइंग होते हैं, वो हर सिचुएशन को आराम से हैंडल कर लेते हैं, बिल्कुल भी उसको सर पे सवार नहीं करते. थैनाटोलॉजी इज द स्टडी ऑफ एजिंग, डेथ, सोसाइटी और वैल्यूज. डेथ. Symbolic satisfaction of wishes through non-rational thoughts is known as displacement, rationalization, fantasy, projection. Fantasy. हम अपने आप को सेटिस्फाई करते हैं कि भाई हाँ मैं ये काम करूंगा तो मुझे ये रिवॉर्ड मिलेगा. डेट इज फैंटेसी. हम अच्छा पढ़ लिख जाएंगे, हमें अच्छी जॉब मिलेगी, मैं इस सेटअप में काम करूंगा, मैं एज ए टेक्नोलॉजिस्ट काम करूंगा, मेरा पे ग्रेड ये होगा, ये सब. दिस इज फैंटेसी. देयर आर डैश टाइप्स ऑफ एथिक्स. 3, 4, 6 to 2. Theory based on 8 stages of development was given by Rickson.